اور لائک آل تھنگس جس طرح کہتے ہیں کہ تھنگز the more things change the more they remain the same, اور پاکستان کی سیاست میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بڑی بڑی تبدیلیاں we go back to square one. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جو چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی اور جس کو ہم نہیں روک پا رہے اور جو سیم نہیں ہے، وہ ہے ڈالر کا ریٹ. 210 کو کراس کر گیا ہے اور کتنا آگے جائے گا. ایک خبر رساں ایجنسی کہتی ہے کہ 238 تک جائے گا ڈالر. اب یہ واقعی سچ ہے یا نہیں، اور ڈالر کا بحران تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نومبر کا بڑا ذکر خیر ہے، کیونکہ نومبر آنے والا ہے. ایک نومبر گزر چکا 2021 میں انٹر مارکیٹ بینک میں 200 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا. یہ ہسٹورک فگر ہے، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، اور اب ہم ہسٹری کو دوبارہ سے لکھ رہے ہیں، ری رائٹ کر رہے ہیں. اور خان صاحب بھی کچھ مایوس نظر آتے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی جو یہ تبدیلی لائے، جنہوں نے ان کو نکالنے میں، ان چور ڈاکوؤں کو واپس لانے میں مدد دی. ساتھ ہی ساتھ نومبر کی بات تو پھر نومبر کی بات ہے، اور اس بات کو کل کل نہیں 2 روز قبل خرم دستگیر صاحب نے کوٹ کیا، لیکن شیخ رشید صاحب کو کب سے پتا تھا، کیونکہ دونوں کی سورس تو نومبر میں. آخر ہوتا ایسا کیا ہے کہ نومبر میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ڈالر ہسٹورک ریٹ پر ہائی ہو جاتا ہے، مورالز لو ہو جاتے ہیں، حکومتیں آنے والی افسوس کر رہی ہوتی ہیں، جانے والی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں. اور شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ آئی بی نے انہیں 4 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں. اور یہ بھی خرم دستگیر صاحب بتا دیں کہ ان کی سورس کیا وہی سورس ہے کیا، یا 2 سورسز ہیں، اور اگر نہیں تو یہ جو آئی بی کو انہوں نے ویٹ کیا ہے اور جو آئی ایس آئی کو یہ چارج دے دیا ہے کہ اب وہ ویٹ بھی کریں گے تمام لوگوں کو، وہ نوٹیفیکیشن کس وجہ سے سامنے آیا ہے. مطلب کوئی کھلا تضاد نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تضاد تو ظاہر ہے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ ریلیف دینے آئے تھے عوام کو لیکن دے دیا خود کو. اور نیب اور امیم پر بڑے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، بڑی بحث ہو رہی ہے. سندھ اسمبلی میں ہم ایسے امبیرسنگ مومنٹس دیکھ رہے ہیں، سیاست نے ایک عجیب ٹرن لے لیا ہے. اور پھر بھی ہم بات کریں ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہونے جائے گی، شاید ہمیں معاملات کا پتہ چل جائے، لیکن نومبر آنے والا ہے. نومبر کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب، ہی از اے پولیٹیکل اکانومسٹ. سر، آپ کی 3 روز یا 2 روز قبل کی جو خبر میں دیکھ رہی ہوں پروفٹ میں، اور وہ بات جو آپ نے 1 مہینہ قبل میرے پروگرام میں بھی کہی صاحب، اینڈ واز آل اباؤٹ دا فیکٹ کہ ڈالر تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، اس کو ہولڈ بھی کیا جا رہا ہے، روکا بھی جا رہا ہے، سیلز بھی روکی جا رہی ہیں، پرائیویٹ کمپنی سے بھی ڈالر لیے جا رہے ہیں. اب نومبر کا ظاہر ذکر آپ نے بھی کیا، اس کے بعد ایک کانفیڈینشیل میٹنگ ہوئی جس کے بعد کہا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ڈالر کو کنٹرول کیا جائے. پھر ان نیچرلی قیمتیں 1 ہفتے میں کم بھی ہو جاتی ہیں. Coming back to what's actually happening, because نومبر میں مجھے تو I can only think of Guns N' Roses کا گانا کہ nothing lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle in the cold November rain. The candle is not the only thing that's hard to hold, it's also very very hard to hold down the dollar, sir. It is very hard to hold down the dollar, اور I think جو بھی اس کی کوشش کرتا ہے آج کل جیسے حالات ہیں تو وہ ہارتا ہی ہے. آج کل جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا سنا، ڈالرز انٹر بینک مارکیٹ میں تو ختم ہو گئے. اور اب جو اچھا میں تھوڑا یہ ایمفسائز کر دوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ بینکس میں ڈالرز نہیں رہ گئے. جن کے ڈالر اکاؤنٹس ہیں بینکس میں، آپ کے ڈالرز سیف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں انٹر بینک مارکیٹ کی، جہاں پہ ٹریڈ ریلیٹڈ سیٹلمنٹس جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اور اب پچھلے ہفتے سے یہ ٹرینڈ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. یہ پہلے ایک دفعہ ہوا ہے پچھلے کوئی 1 سال میں، اور وہ کوئی نومبر 19 کا مہینہ تھا، تو وہی نومبر دوبارہ آ گیا. اور اسی کے بیچ میں ایک دم سے پھر اسٹیٹ بینک نے کیپٹل ریزرو ریشیوز ریکوائرمنٹس جو تھیں بینکس کی وہ کم کی تھیں، اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس میں کوئی 1.5% کا اضافہ کیا تھا ایمرجنسی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں. اس کے بعد سچویشن تھوڑی اسٹیبلائز ہوئی تھی، اور وہ صرف چند دنوں کے لیے ہوا تھا، 2-3 دنوں کے لیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارورڈ پریمیمز نیگیٹو چلی گئی ہیں اسٹارٹنگ فرام آئی تھنک 6 جون سے، اور پرسسٹنٹلی ناٹ اونلی نیگیٹو رہ رہی ہیں بٹ ایک سے ایک ٹینر جو ہے جس میں وہ نیگیٹو ہے وہ انکریز کرتا چلا جا رہا ہے. تو جہاں پہ چند دنوں کے لیے ہم نے 1 ویک ٹینرز میں صرف دیکھا تھا، اب 2 ویکس 1 منتھ 2 منتھس اور آج 3 منتھ ٹینرز میں بھی نیگیٹو فارورڈ پریمیمز چل رہی ہیں. یعنی کہ ڈالرز کی اب شارٹیج اتنی ہو گئی ہے کہ جس شخص کو آگے 3 مہینے آگے کی بھی ابھی اگر ریکوائرمنٹ ہو، یا بینکس جو ہیں وہ ان کو جو بورو کرنا پڑ رہا ہے ایون ٹو
even to furnish 3-month later requirement, वो भी अभी borrow करके वो कर रहे हैं, and as a result उनकी अपनी premiums जो हैं वो negative हो गए because the borrowing cost is higher than what they are earning from their client. अब द सिचुएशन इज कि ये एग्रीवेट करती चली जा रही है. आज मंडे पहला दिन था, आपने हमारी रिपोर्ट का जिक्र किया प्रॉफिट मैगजीन में, सैटरडे नाइट को वो हमने, फ्राइडे नाइट को हमने वो अपलोड की थी. आज पहला ट्रेडिंग डे था आफ्टर दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, एंड आज कंडीशंस मज़ीद और टाइटन हुई हैं, और आज स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग्स भी की हैं बैंक्स के साथ कुछ, और अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा से उन्होंने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं बैंक्स की डॉलर लिक्विडिटी पे, उनको एडजस्ट करने का कुछ फैसला किया है चंद बैंक्स के लिए. ये इमरजेंसी मेजर होता है, टेम्पररी मेजर. तो इमरजेंसी मेजर्स और स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन राइट नाउ सना वी आर इन द डेंजर जोन. पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ इन द डेंजर जोन, और दिनों की बात है बिफोर हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो अनेबल हो जाएगा, वो यानी कि उससे इंपोर्ट रिलेटेड पेमेंट्स करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रहेगी. एंड हमारे एनर्जी इंपोर्ट. ओके, ऑन दैट वेरी नेगेटिव नोट सॉरी खुरम साहब, ये भी बता दीजिएगा, बिकॉज आपने कहा बेज़ाब्तगियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है अगर हुकूमत ने इंपोर्ट्स को रोक दिया है तो फिर भी इंपोर्ट्स स्टेट बैंक के थ्रू करवाई जा सकती हैं, और फिर जाहिर है कि डॉलर्स उसमें भी कमाए जा सकते हैं. ये सवाल से भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा. दूसरा ये कि बिकॉज यूर अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, मुझे बता दीजिए जो मुआशी हमारी इस्तेहकाम है वो कितना हमारे सियासी इस्तेहकाम पर मुनहसर है, और क्या ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स में हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, रियलाइजेशन अभी तक तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ये रियलाइज हो रहा है. आई थिंक टॉप लेवल्स पे कि सिचुएशन असली में कितनी सीरियस है. अभी तक आई डोंट थिंक पूरी तरह रियलाइजेशन ये सिंक इन की है. मिफ्ता साहब को तो कर गई है, ही नोज, लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब की लेवल तक पहुंचते हुए और कैबिनेट में बाकी मेंबर्स को अभी आई डोंट थिंक पूरी तरह अंदाजा है कि कितनी सीरियस है सिचुएशन, एंड हाउ क्लोज वी रियली आर टू पोटेंशियल डिफॉल्ट लाइक सिनेरियो. आपने पूछा कि सियासी मुस्तकाम, आई मीन देखिए, इस पोजीशन पे हम लोग दिनों में नहीं पहुंचे, हफ्तों में नहीं पहुंचे, महीनों में भी नहीं पहुंचे. ये 1 साल से ऊपर है ये सिचुएशन डेवलप होने में. इसकी शुरुआत थी जब हफीज शेख साहब IMF प्रोग्राम साइन करके वापस लाए थे वॉशिंगटन DC से. उस प्रोग्राम के ऊपर कैबिनेट अप्रूवल हो गया था, प्राइम मिनिस्टर की एसेंट मिल गई थी, बोर्ड अप्रूवल हो गया, और जैसे ही पैसे रिलीज हुए तो तब की PTI गवर्नमेंट एकदम से अपनी कमिटमेंट्स पे मुकर गई और रिवर्स करके वो वापस उल्टी डायरेक्शन में जाने लगे. उन्होंने हफीज शेख साहब को निकाला ऑफिस से, शौकत तरीन साहब को लाए और वापस लग गए उसी पाथ पे जिस पाथ से IMF आपको निकालना चाह रहा था, स्पेंडिंग फॉर मोर टू पंप मोर ग्रोथ इन द इकोनॉमी. अब वो 1 साल के लिए करते आए हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज ब्रॉट अस टू दिस पोजीशन बेसिकली. और उस ग्रोथ के बिल्स जो हैं अब उनको अदा करने का टाइम आ गया, एंड द सूनर उनकी पेमेंट पाकिस्तान शुरू करेगा, उतनी ही जल्दी पाकिस्तान को बाकी दोस्त ममालिकान से और बाकी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी से मदद मिलेगी. लेकिन जब तक पूरी तरह से हम IMF को मुतमईन नहीं कर सकते, तो ये वाली स्लाइड जो है पाकिस्तान की टुवर्ड्स डिफॉल्ट एंड डिसफंक्शन, ये एक्सेलरेट करेगी जैसे अभी ऑलरेडी कर रही है. ओके, ठीक है. खुरम साहब, लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब को तो इस बात का इल्म है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लेवल तक शायद ये बात नहीं पहुंची है. लेकिन लास्टली मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि अगर हम दिस क्लोज टू अ डिफॉल्ट, और लेकिन आज ये बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटिमेंट कितनी ज़्यादा है मार्केट में अबाउट द IMF कमिंग थ्रू, क्या आपको लग रहा है IMF विल कम थ्रू, एंड एट व्हाट कॉस्ट? वेयर आर यू सीइंग द डॉलर टेकिंग, लाइक कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, एक दफा अगर जल्द से जल्द IMF के साथ हो जाए अरेंजमेंट, और उसके बैक पे अगर डॉलर इनफ्लोज एकदम से मार्केट में जो अभी ब्लॉक्ड है वो रिलीज हो जाए और वो आना शुरू हो जाए, तो ये सिचुएशन एकदम से रिसीड करेगी. अभी जो हम लोग इंटरबैंक मार्केट में जो रेट्स भी आप कोट कर रही हैं, ये नेचुरल रेट्स नहीं है, ये अनसर्टेनिटी ड्रिवन रेट्स हैं. जब वो अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे भी करेक्शन आएगी.
एंड काफी हद तक इस सिचुएशन से पीछे हटेंगे. लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली द आउटलुक इज नेगेटिव इन द सेंस कि पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू करेगा डॉलर के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में, जैसे बाकी सारे मुल्कों की करेंसीज करेंगी, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट्स चढ़ रहे हैं. उनका जो इम्पैक्ट करेंसी और एक्सचेंज रेट्स पे आता है वो यही होता है. ऐसे पीरियड्स में डॉलर अप्रिशिएट करता है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो उस तरह पाकिस्तान की भी करेंसी पीछे रह जाएगी. लेकिन इमीडिएट टर्म में ये चीज रेक्टिफाई हो सकती है तभी जब IMF प्रोग्राम से फंडिंग अनलॉक होएगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच. और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि बढ़ रहा है इस वक्त महंगाई भी, डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, IMF हमें देगा पैसे नहीं देगा, अनलॉक करेगा, इस सिचुएशन को नहीं करेगा, लेकिन कशीदगी बहरहाल बढ़ रही है सियासी तौर पर. अब हम सुन रहे हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग भी होने जा रही है जो सिक्योरिटी इदारे देंगे. अब उसमें क्या चीज़ सामने आएगी, अब नवंबर की बात बार बार की जाती है, लेकिन अगर हम श्रिंक करने की बात करते हैं तो ऑपोजिशन बड़ी श्रिंक हो गई है पार्लियामेंट में. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, साबिक स्पीकर भी हैं, साबिक पीपल्स पार्टी की रुकन भी हैं, और ऑफ कोर्स इस वक्त GDA से ताल्लुक़ है फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट शॉर्ट क्योंकि आप अपोजिशन मेंबरान बहुत कम रह गए हैं, लेकिन आपके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो राजा रियाज साहब हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो नूर आलम साहब हैं. कोई ऐसा रह तो नहीं गया जिस पे आपको एतराज़ हो और उसको कोई ओहदा ना दिया गया हो ताकि अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन क्लोज टू ना ही हो? जी बहुत शुक्रिया सना, और बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त तो यही ट्रेंड चल रहा है कि कोई रह तो नहीं गया है, पर देखिए बहुत ही अफसोस मुझे हो रहा है, और जिस तरह पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, अब छोटी सी अपोजिशन थी हमारी GDA की, आप उसे भी रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है. और अगर जब हम बात करें तो फिर जिस तरह का रिएक्शन उनके हुकूमती अर्कान का आता है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है. क्योंकि आप क्या चाहते हैं, मतलब बादशाहत तो नहीं है ना, जब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और हमने एक पॉजिटिव रोल अदा करना है. हमने अवाम की जो बात है, अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं, अब जिस तरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो आप देख लीजिए कि कुछ भी हमने नहीं सुना कि अपोजिशन लीडर जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, कि उनकी तरफ से कोई बात अवाम के हवाले से आई हो. और यही चीजें हैं, अगर हम आंसरेबल हैं इस अवाम के, नेशन के, इस पार्लियामेंट के, और इसी को अगर पार्लियामेंट को कोई लेजिटिमेसी देनी है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जरूरत है. और उसके लिए जितने भी मेंबर्स हैं उनको रिकग्नाइज करें. हमें तो आज एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं कि हमको अब स्टैंडिंग कमेटीज हैं. आप देख लीजिए किसी स्टैंडिंग कमेटी में मेरी नुमाइंदगी नहीं डाल रहे हैं. मुझे तो वैसे ये महसूस होता है कि शायद मैं अकेली अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई हूँ पूरे पार्लियामेंट में, लेकिन शायद ऐसा ही हो, कुछ अरसे में शायद आप ही रह जाए फहमीदा साहबा. जी मैं ही रह गई हूँ लगता है. तो देखिए मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूंगी. मैंने हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, मैं आज भी अपना रोल अदा करूंगी. और उसमें जहां भी मैं देखूंगी कि जो भी इनकी वीकनेसेस हैं, जो इश्यूज हैं. अब देखिए बजट भी एक नाम में हाथ सा, मतलब बजट जो इस वक्त हम क्या बोले कि बजट से पहले बजट आया है, बजट के बाद 2 दफा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं. अब ये बताइए कि अगर इसके हवाले से बात नहीं की जाएगी तो उस पार्लियामेंट का फायदा क्या है, जहां पे अवाम के इंटरेस्ट की, अवाम से जो जिस मसाइल से वो गुजर रहे हैं, इस महंगाई की बात अगर हम ना करें तो फिर इस पार्लियामेंट का फायदा क्या है. अच्छा फहमीदा साहिबा, क्योंकि ये बात तो हो रही है कि सिंसियरिटी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देके बैठ गई है और अब इंतजार कर रही है और 2 कश्तियों में सवार रहना चाहती है, लेकिन सिंसियरिटी तो दूसरी तरफ से भी नहीं आ रही है. बिकॉज यू बिन अ स्पीकर, आप मुझे बताइए अगर यही डायलेमा आपके सामने होता है, यू वर इन द शूज ऑफ राजा परवेज अशरफ, गॉड फॉरबिड, व्हाट वुड बी योर मेन कंसर्न? कि आपको लगता है कि वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत इस्तीफे नहीं दिए गए हैं, या आपको कहीं से मतलब कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा कि इनको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, आधे मतलब इनकी सिंसियरिटी पे शक किया जाए? देखिए जहां उन्होंने जब इस्तीफे फ्लोर पे खड़े होके दिए
اور اس کے بعد جو اسپیکر تھے اس وقت کے سوری صاحب جو تھے، قاسم سوری صاحب، انہوں نے وہ استعفے ایکسپٹ کیے اور انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا ٹو الیکشن کمیشن. جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ شاید میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، یہاں یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جو بھی ان کو اگر بریک ہو سکتی ہے، سپلٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کہ کچھ لوگ آ جائیں جیسے کہ ابھی یہ موجود ہیں تو اور بھی آ جائیں، اور دوسری طرف سے بھی یہی ہے کہ شاید وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ کھل کے آ کے دوبارہ اناؤنس کر دیں. حالانکہ باہر تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں میڈیا میں کہ جی ہم استعفے دے چکے ہیں، اور جو کہ میری نظر میں قاسم سوری صاحب نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور انہوں نے آگے فارورڈ کیا تھا. تو اگر میں اس لحاظ سے دیکھوں تو وہ ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اب وہ اسپیکر صاحب جو چیئر پہ ہیں یہ ان کے ڈیسیشن ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا فہمیدہ صاحبہ کہ اب کیا کیجیے گا، بیکاز ظاہر ہے کہ اب کاف لیگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک ممبر کو چوز بھی کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ تو ظاہر ہے اس پر نہیں کان دھرے دیے گئے یا نہیں اس کو بات مانی گئی. لیکن ناؤ لوکنگ ایٹ نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے ظاہر ہے جو اپنے ووٹ کا استعمال تو کیا ہے. اب ان کے چیئرمین کی تقرری کا معاملہ آ گیا ہے، دیو گیون 3 نیمز. اب مجھے نہیں پتا آپ نے مطلب راجہ ریاض صاحب نے کوئی دیا ہے، آپ کا کوئی بھی سے ہے فہمیدہ صاحبہ؟ مطلب اپوزیشن میں ان کے علاوہ جو آپ کہہ دیجئے ٹرن کوٹس ہیں، ان کے علاوہ کسی کا سے ہے ویسے کوئی پارلیمانی جمہوریت نظر آتی ہے آپ کو اپوزیشن جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے درمیان؟ دیکھیے سنا، کیونکہ ہم نے تو جی ڈی اے کے ممبر کا نام دیا تھا اور ہم نے سائن کر کے بھی ان کا دیا تھا جو ہمارے غوث بخش مہر صاحب ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم نے سائن کر کے دے دیا تھا. ان کو خواہش تھی تو ہم نے ایگری کیا. پر بہرحال جو چیز ہے، ہم 3 یا 4 ممبر ہم بھرپور اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جتنے یہ لائے ہیں اور جس طریقے سے یہ لائے ہیں لاز اس وقت پارلیمنٹ میں، اسے ہم نے بھرپور اپوز کیا. پر آپ دیکھیں یہ جو ڈسیڈنٹ گروپ تھا کہ ان کی طرف سے کچھ سننے میں نہیں آیا، حالانکہ اس وقت وہ اس کے سپورٹ میں تھے. جب وہ بل پاس ہوا تب انہوں نے سپورٹ کیا. اگر نہیں کرنا تھا تو اس وقت کم از کم ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ جی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اپوزیشن ہیں، ہمارے کو بالکل نہیں ریکگنائز کر رہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہماری پراپر نمائندگی نہیں ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، تو سمجھیے کہ یہ پارلیمنٹ صرف ایک ایسی ڈمی ایک بنا رہے ہیں اور جس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کیونکہ بغیر اپوزیشن میری نظر میں کوئی جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے. فہمیدہ صاحبہ then why sit in parliament if you think legitimate ہی نہیں ہے, then why not take a position like خان صاحب نے لی ہوئی ہے کہ یہ legitimate نہیں ہے, میں نہیں آؤں گا, میں باہر کھڑا رہوں گا اور پھر مطلب دھرنا دوں گا, دھرنا نہیں دوں گا, پھر مہنگائی پہ مارچ کروں گا, پتہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا. اب نومبر کی بات کی جا رہی ہے, کب سے یہ پلان بن رہے تھے, مطلب کھچڑی تو پکی جا رہی ہے, سیاست تو ہو ہی جا رہی ہے. اگر پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی ہی خطرے میں ہے تو پھر اگر آپ کیونکہ جیسے مریم صاحبہ کہتی ہے میں سب کے لیے ایک ہی کافی ہوں, تو آپ اپوزیشن کے لیے ایک کافی نہیں ہے؟ اٹھائیں آواز, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی سنا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے اگر کوئی اپنے رول ادا نہیں کر رہے ہیں, مجھے عوام کا میں ووٹ لے کر آئی ہوں اور میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں, میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز اس پلیٹ فارم پہ اٹھانی ہے. کوئی سنے نہ سنے, میں اپنا کردار ادا کروں گی, کیونکہ میں نے یہی کچھ سیکھا ہے. ہم نے 1997 میں جب ہم صرف 17 ممبر جیت کر آئے تھے, اور دوسری کیونکہ 2 پارٹی سسٹم تھا اور اس وقت دوسری پارٹی کو ایک بروٹ میجورٹی دی گئی تھی, اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے لیے تجویز تھی ہمارے ممبرز کی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے, بٹ محترمہ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم جائیں گے اور ہم اپنا رول ادا کریں گے. پھر محترمہ ایگزائل میں چلی گئی, ان کی والدہ بھی چلی گئی, تو ہم جا کے ایکچولی کوئی ووکل 4 یا 5 لوگ رہ گئے تھے, اور اس وقت بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں کہ میں نے ایک بھرپور کردار اس وقت ادا کیا اور پورا حکومت کو ہم نے ٹوز پہ رکھا تھا.
اور آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں وہ ریکگنائز کریں یا نہ کریں، عوام ریکگنائز کرتی ہے ہمارا رول، اور جیسے آپ نے بات کہی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میڈیا کا ہی کام ہے کہ وہ دکھائیں اور وہ یہ بتائیں کہ دیکھیں کہ اپوزیشن یہ طریقہ کار ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور جس طرح اگر ٹریجری بینچز سے ہمیں اریسٹ کے خلاف کوئی نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گی، کیونکہ میں نے اپنی ذات نہیں، میں نے عوام کی بات کرنی ہے، میں نے اس جمہوریت کی بات کرنی ہے، میں نے اس بجٹ کی ویکنیسز ظاہر کرنی ہے. جو میری ابھی اسپیچ ہونی ہے وہ ہم نے لانا ہے، اور جو بھی ہمارا کردار ہے ہم اس کے تحت اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. اچھا فہمیدہ صاحبہ تھوڑا اس کی کلیئرٹی دے دیجیے گا، کیونکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوزیشن ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے. بہرحال وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے تو فوجی خاندان ہیں جو میرے ساتھ آ رہے ہیں، تو obviously وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ no one is against anyone، بٹ ایک پوزیشن ان کی بہرحال ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. اس کو مینٹین کر سکتی ہے جی ڈی اے ان دا کمنگ الیکشنز؟ آر وی لوکنگ ایٹ این الائنمنٹ، کوئی پارٹی ایڈجسٹمنٹ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ ٹو ایچ ہز اون؟ اور اب تک آپ ان کے دھرنے کا حصہ نہیں بنے، وہ اگین ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک فیصلہ ہے یا کوئی مطلب اعتراض ہے ان کے نظریے سے؟ نہیں دیکھیے، ہم جی ڈی اے ہیں، ہماری اپنے انٹرنل جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہم اس کی پالیسی کے تحت جانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ جو اصولی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر آخری دن تک ہم وہاں بیٹھے تھے ان کے ساتھ تھے تو پھر ایک ایتھیکلی بھی میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں تھی، اور اس لیے ہم نے وہ ساتھ دیا. ایز فار ایز جب پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی بات آئی تو ہم نے اپنا موقف کلیئرلی دیا کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کریں گے، چاہے انڈیپینڈنٹ گروپ ہو کے کریں چاہے اپوزیشن بینچز پہ کریں. آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے ان کو تو ساتھ ظاہر ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ ہٹائی گئی ہے تو یقیناً ان کے اپنے ایک انٹرنل ان کی جو پالیسی ہے جو ان کے ممبرز فیصلہ کریں انہوں نے تو اس کے تحت کرنا ہے، اور وہ ایک ایگریڈ پارٹی ہے، وہ ایگریڈ ہے. اور کیونکہ جب ایک میجورٹی پارٹی جو بھی آتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کر سکے. اور آج مجھے بتائیے 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں مل کے جو بھی وہ پالیسی بنا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت بزی یہ ہے کہ سب کو کیبنٹ میں نمائندگی چاہیے، سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے، شاید انہیں کو پلیز کرنے کے لیے وہ بھول گئے ہیں کہ کوئی اپوزیشن بھی ہے، ان کو بھی کہیں نمائندگی دینی ہے. تو یہ جو اور اتنا 11 پارٹیز کا بجٹ آج آپ کے سامنے ہے، کوئی ایک دوسرے پہ وہ کچھ بھی کہتے رہے، آج دیکھیے جو الائز ہیں ان پہ اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. آج کراچی نے جو کراچی کو الیکٹرک سبسڈی دی جاتی تھی، سستی بجلی دی جاتی تھی کیونکہ وہ بزنس ہب ہے، اس کو اگر آج ختم کر دیا گیا تو میں حیران ہوں کہ کراچی سے جیتنے والے جتنے ہیں کہ ادھر سے ریاکشن کیوں نہیں آیا. اسی طرح اور آپ ڈفرینٹ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے انٹرسٹ کے تحت آپ انہیں کو پلیز کرنے میں رہیں گے تو آپ عوام کے مفاد میں کیا کام کر سکیں گے. تو میری نظر میں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو یہ 11 پارٹیز کا جو بھی فہمیدہ صاحبہ ویری کوئکلی آپ نے کہا وہ اگریو پارٹی ہیں، اس پہ میں اور آپ اگری کر سکتے ہیں کہ وہ اگریو پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہت غلط ہوا، غیر آئینی اگریو پارٹی ہیں، اس پہ میں اور آپ اگری کر سکتے ہیں کہ وہ اگریو پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہت غلط ہوا، غیر آئینی پارٹی کس سے ہیں؟ آپ یو بائی دی امریکی سازش والی بات، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اپنے ادارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، یا یہ پورا ایک نومبر کا پلان تھا، ایک سازش تھی، لوگوں کو خریدا گیا بیچا گیا؟ I mean you really think America has a role? دیکھیے اب میرا خیال ہے یہ بہت کچھ اس پہ بات ہو چکی ہے، اور میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ادارے ہمارے اپنا کردار ادا کرتے اور یہ دیکھتے، کیونکہ جس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اگر اس وقت الیکشن کمیشن ہو یا جوڈیشری ہو اور انہوں نے اگر سب نے اپنا کردار ادا کرے تو شاید کوئی باہر کی کتنی بھی سازش وہ ہمارے ملک میں اتنا آسان نہ ہوتا. لیکن اگر جب ہم اپنے کردار ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے
अपने रोल इदारे नहीं अदा करते हैं तो बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है। तो यकीनन पाकिस्तान एक इस खत्ते में ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पे आज नहीं हमेशा से ये इस किस्म की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ होती रही हैं, और मैं समझती हूँ या आगे भी इस तरह का रहेगा। वेरी लास्टली, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, सॉरी आई हेट इंटरप्टिंग, आई एम सॉरी, बट मुझे सब ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है इन योर ओन लाइक यू नो एक्सपीरियंस, आपको ये अगले साल अगस्त में जाके इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, या आपको एक ये बहुत छोटी सी मुद्दत नजर आ रही है कि नवंबर से पहले डेट आ जाएगी? व्हाट आर यू थिंकिंग? इज इट लॉन्ग गेम या लॉन्ग हॉल या शॉर्ट गेम? देखिए, डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इकोनॉमी एंड आपके जो चैलेंजेस हैं इस वक्त अफगानिस्तान रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, क्योंकि बहुत बुरी हमारी सिचुएशन है इकोनॉमिकली। अगर हम संभल नहीं पाते तो आई डोंट नो किस तरफ जाएगी सिचुएशन। अगर ये संभाल जाते हैं इकोनॉमी तो देन आई थिंक दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टेन्योर। टर्म जो भी है इसकी वो टर्म, थैंक यू, थैंक यू, अ वेरी लोन बट वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस। थैंक यू डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी, जीडीए की मेंबर, और जाहिर है कि जीडीए सिर्फ उसी वक्त उनका जिक्र नहीं करना चाहिए जब उनके वोट, एवरी वोट काउंट्स में उनका वोट भी डाला जाता है खैर के साथ, लेकिन उनको वैसे भी अपोजिशन का पूरा हक होना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं एक बदनीयती नजर आ रही है पार्लियामेंट में, जो इस वक्त हुकूमत में आ गई है जमातें, वो शायद भूल गई हैं कि अपोजिशन भी करनी आती है। वैसे तो वो अपोजिशन भी जैसी करते थे हमें पता ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे वलीद इकबाल साहब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या इमरान खान साहब मायूस हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं? आने वाले वक्त में हम क्या देखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है वलीद इकबाल साहब। सॉरी इट टुक अस लॉन्गर देन यूजुअल, बट कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हम सुन नहीं पा रहे थे वलीद इकबाल साहब को। इट्स बिन टेरेबल वेदर हियर इन मुल्तान एंड ऑफ कोर्स इन इस्लामाबाद एज वेल। मैं इकबाल साहब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मसला बन गया है, क्योंकि मुल्क जो है आप देख रहे हैं कि इस बहरान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप लोग पार्लियामेंट में नहीं हैं, वहाँ अपोजिशन जो मौजूद है उनके नंबर्स काफ़ी कम हैं। मिर्ज़ा साहिबा भी हमें इस ब्रेक से पहले बता रही थी कि कितना मुश्किल हो गया है। एक बदनीयती का आंसर तो था ही, जो बिल्स मंजूर कराए गए, जो पोजीशन जिनको दी गई इंपॉर्टेंट, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन। सो अब इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ात तो हैं। फिर अब नैब चेयरमैन की तकर्रुरियाँ भी मामला बन जाएंगी, लेकिन अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं रह गई पार्लियामेंट में। और अगर इसी तरह से होता रहा और आपको भी डेट ना मिली, आपने खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे भी ना दिए, आपने पंजाब में भी ये इस तरह का टसल रहा, तो ये मुल्क तो अभी डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया है। इज़ इट टाइम टू चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड खान साहब इंक्लूडेड, ताकि इसको हम कोई बेहतर तौर पर इस चीज़ को जो आप कह रहे हैं इसको हम प्रोसेस भी कर सकें, इसको एड्रेस भी कर सकें? नहीं जी, देखिए, आपने कहा कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं, हम पार्लियामेंट के अपर हाउस में हैं, सेनेट में, और वो हमारा एक बिल्कुल बतौर एक थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट मौजूद है। आज भी हम काली पट्टियाँ पहन के वहाँ मौजूद थे, और आपके शो पे भी मैं ये काली पट्टी इसी यौम स्याह निशानदही करने के लिए कि जिस तरह से आज स्पेसिफिक है, और जो कि ये जो 1200 अरब रुपए के जो करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उनमें से 80% केसेस जो हैं वो इन तरामीम के जो वजह से जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और इससे तो वाज़ेह हो गया है कि ये जो जिसको मैं भानुमती का कुत्ता कहता हूँ, ये जो आपने सुना होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये जो गवर्नमेंट है ये इस किस्म की अनासर और एलिमेंट्स की, और तिनका थोड़ा थोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये करप्शन से रिलीफ लेने आए थे और आवाम को तकलीफ देने के लिए आए थे। और ये खुर्रम दस्तगीर साहब का तो आपने अब देख लिया होगा, वो मशहूर ज़माना जिसके बारे में अली ज़ैदी साहब ने भी लिखा है अपनी ट्वीट में कि जो है दिल की बात वो होंठों पे या लबों पे आ गई, कि ये तो इनकी सारी कार्रवाई जो थी। और आप कह रहे हैं कि जी मुल्क ये इस बहरान की कैफियत में है। मुल्क को बहरान की कैफियत में कौन लेके आया है? अच्छा भला मुल्क चल रहा था, अच्छी भली हमारे पास तो अपनी टर्म के एंड तक का प्लान था। हम भी 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। ये आजकल ये कह रहे हैं कि जी 2.5 महीने से ये जो इन्होंने करके दिखा दिया है, इस वक्त तो माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे जी, मैं ये कहता हूँ कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं,
गले में रस्सियां बांध के अपने आप को फांसियां दे रहे हैं। सुन लें पीपल्स पार्टी वाले, ये होगा हर घर से भुट्टो निकलेगा, इस तरह ये जो हो रहा है, जहाँ तक ये नौबत आ गई है। और दूसरा मैं एक और बात आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, जिस तरह से अवाम निकली है, एक तो अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाहौर में उसका चश्मदीद गवाह था, लिबर्टी चौक पे, और जिस तरह 10 अप्रैल को आए थे लोग, और अभी खान साहब बाहर नहीं निकले, अभी तो वो घर से खिताब कर रहे थे, तो अभी वो निकल आए तो देखते हैं कि ये जो जिस तरह की कार्रवाई की गई 25 मई को, और उसके बावजूद कोई खौफजदा नहीं है। और आपने ये भी देख लिया होगा, और आपके इल्म में शायद हो, कि ये नोम चॉम्स्की और दीगर जो दानिश्वर हैं इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को अब ख़त भी लिखा है कि किस तरह से ये एक्सेसेस जो हैं इंसानी हकूक़ की, जो जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लोगों की ज़िंदगियों की, लोगों की आज़ादी के हवाले से, लोगों की प्रॉपर्टी के हवाले से। अब देखें, पुलिस वाले लोगों की गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले दरवाजे तोड़ रहे हैं। ये पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए होती है, वो इस्तेमाल इस तरह से की जा रही है। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को क्या क्या कुछ किया जा रहा है, आज़ादी राय को जो है, जिस आप अगर इसको ये कह रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल गर्द और बेदार से आए, ये क्यों, किस तरह आया, क्यों आया, ये सारी कार्रवाई ना की होती, ये रातों रात जो है अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके ये जो किया है, तो जाना खड़े होते। और ये ऐसे कहते हैं कि बंदी सलून में हम छोड़ के गए, अगर हमने बंदी सलून में छोड़ी होती तो ये कितनी दफा आप कह चुके हैं, तरीन साहब भी दफा आप कह चुके हैं, तरीन साहब भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर्मर एंड चेयरमैन, वो भी वो कह चुके हैं कि तरीन साहब को भेजा उन्होंने पास के देखें इस तरह की कार्रवाई जो है वो इकोनॉमी को टेल स्पिन में डाल देगी। और यही हुआ है, अब टेल स्पिन में है। क्या हुआ है जी, 28 रुपए की कदर में जो है, डॉलर की कदर के मुकाबले में जो है रुपया गिर चुका है, और आपके रिजर्व्स जो हैं वो ऑल टाइम लो के ऊपर हैं। 28 महीनों में सबसे ज्यादा। इन ऑल फेयरनेस, दे ऐसा नहीं है कि यू वर एक्सट्रीमली गुड एंड दे आर एक्सट्रीमली बैड, इट वाज आप, यू वर मे बी नॉट सो गुड एंड दे आर वर्स, बट माय पॉइंट इज द कंपैरिजन। और ये आज़ादी राय का तो आई थिंक के प्लीज, हमें हर दौर में ही मसला है, और सिर्फ आज के लोगों को मसला नहीं है, हमें भी मसला रह चुका है, नॉट सिर्फ आपके दौर में बट बहुत सारे और लोगों के दौर में भी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब अवाम के साथ खान साहब निकलेंगे, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग? और अब इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग की बात की जा रही है, पार्लियामेंट जाएंगे, सुनेंगे, या वही सेनेटर जो काली पट्टी बस वो सुन के आगे पहुंचा देंगे? देखिए, सेनेट तो हमारा थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट रहेगा। नेशनल असेंबली में कभी तौर पर कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का, क्योंकि कल किसी सूरत भी हम इस भानुमती हुकूमत को ना लेजिटिमेसी देना चाहते हैं और ना उस साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके जरिए ये सारी कार्रवाई हुई, और जिसके जरिए भी मसनूई और गैर फितरी तरीके से जो रिजीम चेंज यहाँ पे की गई, हम कतई तौर पे नेशनल असेंबली में वापस जाकर उसका किसी भी तरीके से उसको जायज करार देने के लिए जो है हम उसमें शरीक नहीं होना चाहते। आपने पूछा I'd love to see कि ये वापस आप जाना चाहते हैं, आप वापस जाना चाहते हैं जो हालात थे उसकी तरफ, अगर आप अपने दौर को वापस रिवाइंड करना चाहते हैं। I just want to know what the process is going to be. आप सड़कों पर आएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट से लोग बात है जी, फौरी और शफाफ इंतखाब, आम इंतखाब, फौरी, फेयर, फ्री, एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं है। तो आपको कल भी इमरान खान साहब ने वादे कर दिए, और हाल भी यही, और ताकत का सरचश्मा आवाम ही होते हैं, उन्हीं से रुजू करने का आप बात हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको अपने आप को करप्शन से रिलीफ देने के लिए और उनको तकलीफ देने के लिए जिस तरह से ये रजीम डाली गई है, ये शामिल नहीं है, और बेहतर यही है। ठीक है। और वो जो बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब के बनी गाला से सीधा अडियाला जाएंगे खान साहब अगर केसेस खुल गए, तो ये आप तलाल साहब को कोई रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? तलाल साहब को लगता है तंजीम साजी से फुर्सत मिल गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस लेवल के लीडर या सो कॉल्ड लीडर को जो जवाब देना भी मेरिट नहीं करता, इसलिए मैं तसव्वुर करता हूं कि ये सवाल आपने पूछा ही नहीं। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, नथिंग लेस देन फौरी और शफाफ इंतखाबात। थैंक यू इकबाल साहब, आई एम सो सॉरी, आई एम आउट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कादिर मंदुखेल साहब से बात करेंगे। एक नया बयान दिया है, हम तो सिर्फ एडवाइजरी रोल के लिए आए हैं, क्या ये मखलूत हुकूमत में सिर्फ करने के काम नून लीग के हैं और सुनने के काम किसी और के हैं, और ये सिर्फ एडवाइस करते हैं, तो ये मखलूत हुकूमत का हिस्सा किस बुनियाद पर है और काबीना में किस बुनियाद पर है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू गूंज. हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब. ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन. थैंक यू सर. मंदोखेल साहब, आपने इस वक्त निकाला. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है. इसकी निशानदेही पर खान साहब ने भी की थी, अब हमें भी दिख रहा है कि सारे गलत फैसले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब की गोद में, नून लीग साहब के वोट बैंक में, और आपको जाहिर है एक फ्यूचर प्लान है. कहीं बिलावल साहब का भी अप्रूवल है, कहीं पे किसी से सीट एडजस्टमेंट की बात भी है. सिंध तो आपका है ही, बाकी एरियाज में आप काम कर रहे हैं. आपकी वापसी भी हो रही है पंजाब में. कुछ यहाँ पर आप पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग का मामला रहेगा. ये बातों करने वाले एनालिसिस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो बात फैसल करीम गुंडी साहब की कोट हुई है, जो उन्होंने कल कही है, वो ये कहा है कि हम तो एडवाइजरी रोल में हैं, अब हमसे एडवाइस मांगी जाती है तो हम दे देते हैं. क्या ये सिर्फ गुंडी साहब का बयान है जिसको मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, या ये आपकी पोजीशन है एज अ पार्टी? देखिए सना, बड़ा वाज़ेह है, जो भी कोई डिसीजन है वो ड्राइविंग सीट पे प्राइम मिनिस्टर साहब है, शहबाज शरीफ साहब, उन्हें लेना है. अब मिसाल के तौर पे अमन अमान के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है. आप मुझे बताओ, मैं बैसियत रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का या हमारे कोई काबीना का मेंबर हो, वो तो काम तो नहीं कर सकते जो राना साहब करेंगे. हाँ, इसी तरह जो वजारत खारजा की हमारा समझ लो ड्राइविंग सीट हमारे पास है. बिलावल भुट्टो साहब आपके सामने अभी रिसेंटली जो पीटीआई वाले कहते थे कि ये सियासी अदारा है एफएटीएफ, और हमने वो किस तरह जो ना वो चीज मनवा ली है. क्रेडिट वो ले रहे, लेने तो कोई मसला नहीं है. वैसे जेएचक्यू में भी एक कोर्स चलता, यकीनन उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए. सवाल ये है कि जो हमारे पास मिनिस्ट्री है उसके तो बराह रास्त हम जिम्मेदार है, और जो हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं है उसमें भी हम कौमी हुकूमत है, हम जिम्मेदार है. यानी इस वक्त एनपी के पास कोई काबीना में नुमाइंदगी नहीं है तो वो भी जिम्मेदार है. एमक्यू में सारी पार्टी है जो काबीना में नहीं है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि कौमी हुकूमत है. तो ये एक बात कोट करना गुंडी साहब का उस तरह से तो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है. नहीं, ये तो आपकी बात जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है वही सिरे से मुझे समझ नहीं आया. एक तो ये कि आपको किसने कहा कि आप ड्राइविंग सीट में, आप लोग कैसे आ गए ड्राइविंग सीट में, कब आए? दूसरा ये कि आप पैसेंजर हैं तो आप पीछे बैठे हैं, वो डायरेक्ट पैसेंजर हैं, लेकिन चलें इस गाड़ी के बेसिस पर नहीं जाते. ये बता दीजिएगा कि अब हमने ये डिफरेंशिएट करना होगा. अच्छा, ओहो, फाइनेंस मिनिस्टर किसका था? अच्छा, नून लीग का. अब इनकी बात कर लेते हैं. अच्छा जी, अब ये खारजा का मसला था, चलो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं. अब हम ये करेंगे, मतलब आप एज ए हुकूमत हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप कहेंगे उसकी मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री. देखिए, मैंने बड़ी वाज़ेह जवाब दे दिए, फिर भी आप नहीं समझने चाह रहे. आप लोगों के पास तो वैसे बहुत टाइम है. एक दिन वजारत खारजा पे करे, एक दिन वजारत दाखिला पे करे, एक दिन फाइनेंस पे करे. आप करते रहे प्रोग्राम, आपके पास तो टाइम ही टाइम है. सुबह से लेके शाम तक अब आपके टॉक शो होते हैं. पहले वो मॉर्निंग शो होते हैं तफरी के या समाजी काम होते थे, अब वो भी पॉलिटिकल शो बन गए. तो आपके पास तो टाइम बहुत है, आप शो क्या करे हर वजारत पे. लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो पार्टी है जो काबीना में नहीं भी है, वो भी ये इसको भी हुकूमत का हिस्सा है, वो इसकी जिम्मेदार है, और उनकी मशावरत में इनका हिस्सा होता है. ऐसी कोई बात नहीं है. आपकी बात समझ नहीं अच्छी लगी, लेकिन चलें ठीक. नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है और आपके पास नहीं है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. मैं बहुत फारिग हूँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट सर. लेकिन अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे. ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो मामला जा रहे हैं, जो महंगाई का मामला है, बहरानी कैफियत है, इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग की बात भी हो रही है, मामला नहीं संभल रहे, इमरान खान साहब नहीं संभल रहे. अब आप इसको एज ए थ्रेट देख रहे हैं इन मामला को, या आपका इस पे कंसेंसस है कि आपने आगे करना क्या है, या अभी ये फैसला नहीं हुआ है? देखिए सना, आप थोड़ी देर पहले आप जो पीटीआई के दोस्त से आप सवाल कर रहे थे कि आप लोग इस बात पे कायम है कि जब तक आपको तारीख नहीं देंगे, आप किससे सवाल करें? यू टर्न तो इजाद उन्होंने की है, यानी इनका कोई सख्त अल्फाज नहीं अदा करो, उनका कोई आता पता है कि एक बात पे कायम रहेंगे. ये तो कहते हैं दुनिया का अजीम आदमी, कामयाब आदमी तो वही है जो यू टर्न ले. यानी हमारे यहाँ जो किसी को अगर आप धमकी दे कि फलां जगह जो देखूंगे तुम्हें, और बंदा नहीं जाए, तो वो तो बड़ी गलत अल्फाज में उसको नवाजा जाता है इसमें. और ये शख्स कहता है कामयाब आदमी का, बड़े आदमी की निशानी है. तो सवाल ये, आप बताएं कि ये जब कहते हैं 6 दिन, मैं उस रात को जा रहा था, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इन्होंने बार बार जो टाइम दिए, अब टाइम में ये आ गया, अब इमरान नियाजी साहब बनी गाला के अंदर बैठ के लोगों से खिताब कर रहे हैं. यानी इनकी जो इनकलाब है, इनकी जो जद्दोजहद यहाँ तक आ गए, यानी जो दरख्तों को आग लगा है, जो उन्होंने सारे
तमाशे किए हैं, अब वो जाके 1-2 FIR से जो कि लीगली उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उनसे वो डर के अब खामोश बैठ गए. अब ये टॉक शो के जरिए बात करेंगे या वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे. अच्छा, पर क्या कीजिएगा? ये डॉलर तो काबू नहीं आ रहा। मंदोखेल साहब, इकोनॉमी का हाल आप देख रहे हैं, आप कितना टाइम समझते हैं आपको लगेगा इन मामला को ठीक करने में? और क्या ये इस बात पर हतमी फैसला हो गया है कि अच्छा जी 3 महीने में ये सब मामला ठीक हो जाएगा, हम साल गुजारेंगे, अगले साल हम देखेंगे इंतखाबात को? मैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ये हालात काबू में आ जाएंगे, क्योंकि जो आलमी अदारों के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे वो मुआहदे हमें पासदारी करना पड़ेगा. रूस के दौरे का हमने मुखालफत की, आज बिलावल साहब वजीर खारजा बन गए, हमने हिमायत की क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे. एज अपोजिशन तो हम उस वक्त मुखालफत कर रहे थे और मैं जाती तौर पर मुखालफत करूंगा, लेकिन चूंकि वो उस वक्त सेलेक्टेड को या जो भी को मुंतखब को वज़ीर आज़म की हैसियत से वो रूस गए, तो हम उसको ऑनर कर. इस तरह जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं उनकी हमने पासदारी करनी है, उनको हमने मानना होगा. आप जरा सऊदी अरब को मुआहदा याद करके देख ले जो उसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम लिखा हुआ था. क्या आप IMF के साथ किसी भी अदारे की आप वायलेशन करेंगे, हम ये मुआहदा तोड़ देंगे 72 घंटे के अल्टीमेटम पे. इस तरह ये पूरी दुनिया जो है इंटरलिंक है. आप किसी की खिलाफ वर्जी करके किसी के साथ, यानी आपने मुआहदा किए 4 रुपए रोज हम बढ़ाएंगे, हर महीने बढ़ाएंगे, और आप वोगरा ने 8 रुपए समरी भेजी, आपने 10 रुपए मजीद कम कर दी, आपने वायलेशन किए. वायलेशन जो ना आज हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा या पाकिस्तानी अवाम भुगत रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल ठीक है. कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. यहाँ पर जाहिर है हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ है. ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, मुल्क की मईशत नहीं चल रही और डॉलर मुस्तकिल तौर पर ऊपर जा रहा है, हमारे खसारे बढ़ते चले जा रहे हैं. लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि अगर IMF से हमें फौरी तौर पर ये अनलॉक नहीं हुई जो पेमेंट ड्यू है, तो वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ डिफॉल्ट, और इसके लिए हम मुतहम्मल नहीं हो सकते. आई होप better sense prevails. Thank you for watching today. We will see you tomorrow.